different models of atoms given by different scientists, and from those models we get a clear picture of the structure of the atom. So you know that atom contains three subatomic particles. Atom has subatomic particles: electrons, protons, and neutrons. Right? There is a nucleus in the center of the atom where entire mass is concentrated. This is the basic picture of atom. Here in center it is the nucleus. Okay, where entire mass is concentrated. You know that proton and neutron has some mass, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, negligible होता है. It means that nucleus contains protons and neutrons. Protons, you know the charge on each particle. Electron has negative charge, proton has positive charge, and neutron has no charge. Okay, so nucleus contains protons and neutrons. So tell me that what is the charge on the nucleus? Obviously, because proton is positively charged, it means that nucleus is also positively charged. That is why nucleus is positive. ठीक है, so nucleus has protons and neutrons. It has positive charge and it has entire mass. Okay, now around nucleus electrons revolve in fixed discrete circular orbit, which are called energy levels. These things you have studied in last class. Now we are going to proceed that how many electrons in one shell, how many electrons are there in single shell. Okay, so there is a rule given by Bohr, who gave atomic model. Okay, so the distribution of electrons in different shells was suggested by Bohr and Bury कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट. ओके, सो maximum number of electrons in a shell is given by 2n square. ये क्या है? इसमें n जो है वो नंबर ऑफ शेल है. आपको पता है नंबर ऑफ शेल हम 1 2 3 4 या फिर KLMN से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो अगर फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1. अगर सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 होगी. ओके, तो 2n स्क्वायर में हम n की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं. ओके, if shell is 1, it means shell is K, then number of electrons are 2. Okay, if shell number is 2, then number of electrons are 2 into 2 square, it means 8. Right, so in this way we can find out first shell or K shell can have 2 electrons, right? Second shell or L shell can have 2n square, 2 into 2 square, 8 इलेक्ट्रॉन्स. n की जगह आपको शेल का नंबर पुट करना है. थर्ड शेल 2n स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन्स. एंड लास्ट में फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन. So this is the first rule for distribution of electrons in a shell. All right, electrons are very necessary to study because all the properties of atom depends on electrons, how they are distributed in different shells, and this is called electronic configuration. Electronic configuration, it means distribution of electrons. Electronic configuration is distribution of electrons in different shells. Okay, second rule इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है, किसी भी एटम में मान लीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जब हम उसको फिल करेंगे वन बाय वन, पहले फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल. ठीक है, तो जो हमारी सबसे बाहर वाली शेल आएगी उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेशक वो थर्ड शेल हो या फोर्थ शेल हो. ठीक है, आपने पढ़ा है थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर थर्ड शेल सबसे बाहर वाली है, आउटर मोस्ट है, तो उसमें हम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन आउटर मोस्ट शेल इज 8. ओके, एंड थर्ड रूल वाज इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस
द इनर शेल्स आर फिल्ड. इट मीन्स पहले अंदर वाली शेल भरी जाएंगी 1 2, उसके बाद 3 एंड 4, so on. Alright, so these are the rules for electronic configuration. Okay, so why electronic configuration or electrons are so important? Because electrons are involved in bond formation. Electrons are involved in making new compounds. कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, जब भी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं या फिर एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है, दो कंपाउंड्स मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, उसमें एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है. एटम्स के बीच में एक फोर्स होता है जिससे वो एटम्स आपस में कंबाइन रहते हैं. ओके, दैट इज़ वाई अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स. तो आई मीन टू से दैट कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स हैव अ great role, have a very important role in its formation. So a chemical bond is the force of attraction between atoms in a molecule, okay, between atoms to form a new chemical compound, new chemical substance, जिसको आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे केमिकल बॉन्ड को. सो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है. सो जब भी बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में तो इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है इसमें. इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है. एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, या तो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है. सो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होते हैं. ओके, और लूजिंग और गेनिंग में कौन सा रूल अप्लाई होता है कि एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ओके, that depends on this rule number 2. okay, maximum number of electron in outermost shell is 8. कि कोई भी जो स्टेबल एटम जो होगा उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, सो अगर किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको चाहिए 8, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, ठीक है. अगर किसी एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर उसको 8 चाहिए. 8 क्यों चाहिए, क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. जो आउटर मोस्ट शेल होती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम ऑक्टेट कहते हैं. ऑक्टेट इज अ शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट, ठीक है. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक जो है गेन करेगा, ठीक है. अगर किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, 8 लाने के लिए क्या वो 6 गेन करेगा या फिर 2 को लूज़ कर देगा. आप बताइए, 6 गेन करना आसान है या 2 को लूज़ करना आसान है. ऑब्वियसली 2 कम है तो इट विल लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से उसकी जो पहली वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ओके, सो इट विल लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में तो 4 वो गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है, या दूसरे तरीके का बॉन्ड भी वो बना सकता है जिसको आप बाद में पढ़ोगे. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड दिस वे इज कॉल्ड वैलेंसी. ओके, सो नाउ वी कम टू द वैलेंसी. आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा था कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. मतलब अगर कोई एटम कितने एटम्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, अपने साथ. जैसे आपने ये पढ़ा था, क्रॉस करके आपने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है. ये आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख कर आइए, ठीक है. तो इन दिस वे इसका फार्मूला बनेगा केमिकल फार्मूला NaCl, ठीक है. सोडियम विल कंबाइन 1 क्लोरीन, इट्स वैलेंसी इज 1. क्लोरीन विल कंबाइन 1 सोडियम, इट्स वैलेंसी इज 1. सो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये आपने पढ़ा था. लेकिन हम इसको अभी और डिटेल में इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी.
What is valency? Read this. The number of electrons lost, gained, or shared by an atom to attain octet configuration. Octet configurations means 8 electrons. Is called the combining capacity or valency of the element. So valency की correct definition है ये. इसको याद रखिएगा, समझिएगा. बॉन्ड बनता कैसे है, लूज़ करके क्या होता है, गेन करके क्या होता है, शेयर करके क्या होता है, ये आप आगे बड़ी क्लासेस में इसको पढ़ोगे. अभी आप वैलेंसी याद रखिए कि वैलेंसी क्या होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ और गेन क्यों होते हैं टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो एवरी एटम टेंड्स टू बिकम स्टेबल बाय मेकिंग बॉन्ड. अगर अकेला कोई एटम है तो उसमें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके पास कोई दूसरा जो एटम आएगा, तब वो एटम कोशिश करेगा कि एटम को उसको देकर या उससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर या उससे इलेक्ट्रॉन्स देकर जो है अपना जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वो बना ले. ठीक है. सो एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके या गेन करके या फिर अपना इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके जो है अपने ऑक्टेट को स्टेबल कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए, लूज़ किया, गेन किए, दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. सो यू कैन रीड दिस. इफ़ एन एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, अगर पहले से ही फिल्ड है किसी एटम की आउटरमोस्ट शेल, तो उससे कोई बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ स्टेबल. सो दैट इज़ वाई दैट डज नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग. कोई रिएक्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव और इनर्ट एंड इट्स वैलेंसी इज़ ज़ीरो. ठीक है. अभी आप पढ़ोगे कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी, उसमें कुछ की वैलेंसी ज़ीरो आएगी क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट इज़ वाई दैट इज़ इनर्ट. इनर्ट मीन्स नॉट रिएक्टिव. ओके. But if an atom's outermost shell is not filled, it is not stable. It will try to attain stability by losing, gaining or sharing electrons with other atoms to attain octet configuration. यही जो अभी आपको ध्यान से समझना है. All right. So one by one we will take this. What is this? Watch this carefully. Look at this carefully. This is basic atomic structure. Okay. जैसे कि आप इसको देखिए, हाइड्रोजन को, सबसे सिंपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन हैज़ न्यूक्लियस तो सभी में होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में है. ठीक है. तो चलो पहले हम इस टेबल को देखते हैं, उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर को देखेंगे. So in this table we are studying about number of electrons, number of protons, number of neutrons and valency. ठीक है. So number of protons and number of electrons are equal. ये आपको पता है, लास्ट क्लास में ये हुआ था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है. तो अगर प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, प्रोटॉन्स 5 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हैं. ठीक है. और एक दूसरी जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा. सो एटॉमिक नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय Z इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम. जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतना एटॉमिक नंबर. ओके. सो हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4. तो ऐसे ही सीक्वेंस में आपको 1 से लेकर 18 तक, 20 तक ये सारे एटम्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे तक आपको काम आएंगे. ठीक है. आज आप इन सभी के नाम याद कीजिएगा सीक्वेंस में. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. ठीक है. ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. These all are first 18 elements. Composition of atoms of first 18 elements. तो जितने प्रोटॉन्स हैं उसी के सीक्वेंस में आप लर्न करेंगे. सो एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 18. एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1. So because it has 1 proton.
Beryllium has atomic number 4, so it has 4 protons. Oxygen has atomic number 8, so it has 8 protons. Right? So you have to learn this. और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होंगे, तो मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में फिल कर सकते हैं और वैलेंसी निकाल सकते हैं. ओके. और न्यूट्रॉन्स भी आपको पता है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स के साथ. इसका नंबर जो है जनरली इतना ही होता है, लेकिन कभी कभी 1-2 ज़्यादा भी हो जाता है. ठीक है, जैसे कि क्लोरीन में प्रोटॉन्स 17 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 17 हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 हैं. तो न्यूट्रॉन्स कभी कभी जो है कम ज़्यादा हो जाता है. नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. From atomic number you will find out electrons, and from electrons you will write electronic configuration or distribution of electrons in K, L, M and N shells. Okay, so we will start hydrogen. Hydrogen atomic number 1, number of electrons 1, so K shell has 1 electron. Helium atomic number 2, number of electrons 2, so first shell, first shell में maximum electrons 2 आते हैं. आपको याद होगा 2, 8, 18, 32 ये किया है हमने अभी 2n² से. ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8. ओके, सो हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो K shell has 2 electrons. Now we move on. Lithium has 3 atomic number, 3 electrons. So first shell 2 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1. सेकेंड शेल है 1 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली आप बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन करेंगे. उसके बाद हम करते हैं नियॉन. Ne, सिंबल Ne होता है. जो भी एटम है उसका सिंबल आप ध्यान से देखेंगे, अगर 2 लेटर्स में है तो पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा. ठीक है, सो नियॉन एटॉमिक नंबर 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. सो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बचे? 8. Second shell 8 electrons. This neon is called inert gas. Inert means not reactive because it has complete octet. It has already 8 electrons. So it will neither lose nor gain. It will not form any kind of bond. It will not involve in any chemical reaction. So neon का कोई भी compound नहीं बनता है. Okay. Next आते हैं हम सोडियम पर. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं. तो स्टार्ट कीजिए. फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 हो गए. अब थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट आप मैग्नीशियम करेंगे, एल्यूमिनियम करेंगे, सिलिकॉन करेंगे. सल्फर देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, राइट. सो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड 8, 6 बच गए तो 6. तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड टू कंप्लीट ऑक्टेट. तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम ले लेते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं. बॉन्डिंग में कोई भी नया केमिकल कंपाउंड बनता है, आउटर मोस्ट शेल ही इन्वॉल्व होती है. ऑक्टेट जो है आउटर मोस्ट शेल का ही देखते हैं हम. ठीक है, सो 2 and 7. सो फ्लोरीन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, सभी को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी विल बी 1. कोई और एग्जांपल लेते हैं, हम लेंगे सोडियम एटॉमिक नंबर 11,281. ठीक है, सो सोडियम विल इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्टेट. सो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगी. सो सोडियम हैज़ वैलेंसी 1. कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4. सो इट कैन लूज और गेन. 4 को लूज भी कर सकता है कार्बन, गेन भी कर सकता है, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 4. ठीक है, अगर 4 से कम है 2, 3 किसका है? 2, 3 है बोरोन का. सो इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर 4 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जांपल 2 and 5,
ये किसका एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का। सो वैलेंसी विल बी 8 - 5 3, क्योंकि गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इज ईजियर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट octet, so its valency will be 3। सो इस टेबल से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, 2 2 है, ये बेरिलियम का है, वैलेंसी 2। ठीक है, 3। तो जब भी आप देख रहे हैं 4 से जब कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी वही है। ठीक है, 4 से ज़्यादा है 5 6 7 8, तो हम 8 से माइनस करके वैलेंसी को निकाल रहे हैं। पॉइंट यही है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। जो चीज़ ईजी हो एटम वही करेगा। लूज़ करना ईजी है तो लूज़ करेगा, गेन करना ईजी है तो गेन करेगा। ठीक है, दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट वैलेंसी। लास्ट चैप्टर में आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो पढ़ा था, तो उसमें आपने आयंस पढ़े थे, आयंस, कैटायंस, अनायंस, है ना। तो आयंस भी तभी बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या गेन करता है। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की क्या है 2 और 6, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इट्स वैलेंसी इज 2। इस पर चार्ज भी कितना होगा फिर, इट विल, सिंस ऑक्सीजन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ऑक्सीजन का आयन क्या बनता है, O2 नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ gained 2 electrons, so it has negative charge, and that is why it is called anion. Anion means negative ion। ठीक है, किसी कैटायन की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 2 8 एंड 2। सो स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए, मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो मैग्नीशियम पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, इट इज़ कॉल्ड कैटायन। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने से एटम न्यूट्रल होता है। अगर हम सिर्फ मैग्नीशियम लिखते हैं तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम ज़्यादा हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज़ वाई इट, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। So cation is formed by losing electrons, anion is formed by gaining electrons, and losing and gaining is number of electrons lost or gained is called valency। आप एक एक करके सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर याद करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर वैलेंसी आप निकालेंगे। ठीक है, वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा होती, 5 6 होती, तो कभी इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या गेन करता ही नहीं है, क्योंकि इससे इजी होगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने से अच्छा है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने से अच्छा है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। ठीक है, सो वैलेंसी विल ऑलवेज बी लेस देन 4, तो आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी। प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी। तो अगर आप इसी तरीके से किसी भी एटम का डायग्राम, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। फ्लोरीन का ले लीजिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप याद कीजिएगा। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस ऑक्सीजन वाले को, इसको फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 6 हैं। ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेकंड शेल में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब नियोन में दोनों शेल्स फिल हो जाती हैं, नियोन में क्या हो जाता है 2 और 8 हो गया, दोनों शेल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट शेल में आएंगे किसमें, सोडियम में। तो सोडियम में 3 शेल्स होती हैं इस सोडियम में। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, पहली में 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है। इसी तरीके से फिर आगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ऑल राइट, सो दैट्स हाउ यू कैन राइट कॉन्फ़िगरेशन। Fluorine can gain 1 electrons to become stable, so its valency is 1. Nitrogen can easily gain 3 electrons, so its valency is 3.
आई होप आपको ये वैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से समझ लेना, रिवाइंड करके देख लो, नहीं समझ आया तो 2 बार 3 बार, और प्रैक्टिस कर करके देखो अच्छे से, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक नंबर, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और मास नंबर जो थोड़ा अलग है, अभी पढ़ेंगे। सो एटॉमिक नंबर तो आप बता ही सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट में सभी एटम्स सेम ही होंगे ऑब्वियसली, तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, ये तो अंडरस्टूड है। ओके, सो हाइड्रोजन हैज़ 1 एटॉमिक नंबर, सो 1 प्रोटॉन। और ये भी आपको ध्यान है कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है। सो हम डेफिनेशन में प्रोटॉन्स लिखते हैं, लेकिन जनरली एटॉमिक नंबर जब भी आपको ध्यान आए तो इलेक्ट्रॉन्स ही आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? देखिए, आप मुझे बताइए कि किसी भी एटम का सारा मास कहाँ पर कंसनट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में, राइट। जो न्यूक्लियस होता है उसमें कंसनट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में ही मास वाले पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास होता नहीं, बहुत कम मास होता है ना, और 10⁻³ ऑर्डर में। लेकिन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास होता है वो हम नेग्लिजिबल नहीं लेते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कुछ मास होता है, जो आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। सो आप, और क्योंकि एक प्रोटॉन पर हम 1U मास लेते हैं, ओके, और एक न्यूट्रॉन पर भी हम 1U मास लेते हैं, इसलिए जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है एक एलिमेंट का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। सिंस एंटायर मास इज इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 ही होता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स टोटल हैं उतना ही उसका मास होगा। अगर किसी एटम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा? 4। अगर किसी एटम के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 4 + 4 8 यूनिट, ठीक है। अगर किसी एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, मतलब उसका प्रोटॉन्स का मास 6U है। अगर किसी एटम के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका मास 6U है। 6U + 6U मेक्स 12U, ये कार्बन का है, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सो मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ओके, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए कि ये एटॉमिक मास हम यू में ले रहे हैं, ग्राम में नहीं। जब हम ग्राम में लेते हैं तो मास अलग होता है, ये यूनिट है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। AMU, AMU, डिफाइन AMU। AMU को हमने लास्ट चैप्टर में डिफाइन किया था। AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 मतलब इसका मास 12 है, ठीक है। तो 1U, दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट। और 1 ही क्यों लेते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट? क्योंकि 1 के कंपैरिजन में फिर जो बाकी जो भी मास है वो होल नंबर्स में ही आते हैं, 2, 3, 4, राइट। सो कार्बन 12 का 1/12 मास कितना होता है? 1U होता है। इसलिए हाइड्रोजन का मास कितना लेते हैं हम? 1U। ओके, हाइड्रोजन का मास 1U ही तो लेते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए 1 प्रोटॉन का मास भी कितना आता है? 1U। इसीलिए हम लिखते हैं प्रोटॉन का मास 1U ड्यू टू स्टैंडर्ड यूनिट। हाइड्रोजन हैज़ 1U मास एंड हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन, सो प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट मास। ओके, सो मास का कॉन्सेप्ट, मास नंबर, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए एटॉमिक मास यूनिट में। ओके, अब ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सिंबल कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, 14(7) ये है नाइट्रोजन का सिंबल, ठीक है। तो बीच में आप सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर मास नंबर लिखते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7, मास नंबर 14। सिमिलरली अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, ठीक है। कार्बन का पूछा जाए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा, और
मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ये मैंने एक एलिमेंट लिखा है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 40 मास नंबर होता है। आप मुझे बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब देखिए 20 एटॉमिक नंबर है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 40 मास नंबर है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों हैं, ये खाली प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 40 माइनस 20, 20, राइट। 40 किसका सम है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 20 प्रोटॉन है, सो न्यूट्रॉन विल बी 20। सो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ऑलमोस्ट आपने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आपको समझ आ गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने लिख लिए। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, अभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कार्बन के बारे में आपने पढ़ा कि प्रोटॉन कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, और न्यूट्रॉन भी इसमें 6 हैं, ठीक है, अलग भी हो सकते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि एटम्स जो हैं, एटम इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इसीलिए हम एलिमेंट को जो है प्योर सब्सटेंस बोलते हैं कि एलिमेंट में सारे एटम्स सेम टाइप के होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स। लेकिन रेयर कंडीशन में कभी कभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स में दो तरीके से मिल सकते हैं। मतलब एक ही एटम, एक ही एलिमेंट का एटम दो टाइप का हो सकता है। इन दो तरीके के जो एटम्स हैं इनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट सम डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है? देखिए हम कार्बन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन। लेकिन एक कार्बन का दूसरा एटम होता है जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, सॉरी मास नंबर 12 होता है, और दूसरे का मास नंबर 14 होता है। 6 + 8 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं। सो आइसोटॉप्स वी डिफाइन एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, different atoms of same element having same atomic numbers but different mass numbers, ठीक है। एक ही एलिमेंट जब के एटम जब अलग अलग फॉर्म में होते हैं, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, तो उसको हम आइसोटॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, कार्बन का पढ़ा। इसके अलावा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन भी 1H1, 1H2, 1H3। क्या मतलब है इनका? मतलब फर्स्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ही प्रोटॉन है, 1H1। ये हाइड्रोजन का नॉर्मल जो जनरल एटम है। इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने? 1। मास नंबर 1 है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स 0 हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन्स 1 हैं और न्यूट्रॉन्स 0 हैं। दूसरा इसी का आइसोटॉप होता है, इसी एलिमेंट का फॉर्म होता है 1H2। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है लेकिन मास नंबर 2 है, मतलब न्यूट्रॉन भी 1 है इसमें। तो ये होते हैं 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, जिनको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1H1, 1H2, 1H3। आप मुझे बताइए ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? न्यूट्रॉन्स हैं 2, ठीक है। कार्बन का हो गया। इसी तरीके का क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, 17 क्लोरीन 35 एंड 17 एंड 37। मास नंबर 37 होता है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो जो आपका एलिमेंट होता है वो प्योर होता है जनरली, लेकिन आइसोटोप उससे भी ज़्यादा प्योर होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको मान लीजिए कार्बन का जो एलिमेंट मिलेगा, मान लीजिए आपको कार्बन का कोई
एलिमेंट मिला, उसमें क्या हो सकता है कि कार्बन के दोनों आइसोटोप मिक्स हो सकते हैं. समटाइम्स एन एलिमेंट में बी मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स. ओके, दैट इज वाई आइसोटोप इज द प्योरेस्ट फॉर्म. ऑल्सो रिमेंबर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम. ठीक है, आइसोटोप जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, केमिकली सेम है, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही अलग है ना, तो केमिकली सेम है, इनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. केमिकली दीज आर सिमिलर. ओके, so these are isotopes. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, कार्बन में, इस कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं, लेकिन इस कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं लेकिन और 8 न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो दीज आर आइसोटॉप्स. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. आइसोटॉप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव वेरियस एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल, यूरेनियम का आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है. ठीक है, कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, इसका आइसोटॉप कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, कैंसर ट्रीट करने में कोबाल्ट. और आयोडीन का आइसोटॉप होता है एक, जो गॉइटर डिजीज़ जो होती है उसको क्योर करने के काम में आता है. बात है आइसोबार्स. आइसोबार्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है इतना, लेकिन कभी कभी काम आते हैं. कि आइसोबार्स होते क्या हैं? आइसोबार्स में सब कुछ अलग होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होते हैं, प्रोटॉन्स भी अलग होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी अलग होते हैं, हालांकि एलिमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, बट उन एलिमेंट्स का मास नंबर सेम होता है. सो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर. इसके एग्जांपल्स एक तो हो गया आर्गन, ठीक है, एंड कैल्शियम, क्योंकि हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं, तो आर्गन और कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता ही है दोनों का, 18, 20, ठीक है, लेकिन इनका मास नंबर 40, 40 है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स. तो आप देख सकते हैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हैं, प्रोटॉन भी अलग अलग हैं, न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, 40-20, 40-18 जो है 22, तो सब कुछ अलग ही होता है, बस इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का मास नंबर सेम होता है. आर्गन कैल्शियम हो गया. ठीक है, ओके, सो एक 2-3 और एग्जांपल्स होते हैं, आप बस ये आर्गन कैल्शियम का याद कर सकते हैं. दीज आर द आइसोबार्स. सो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस हुआ? आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट होते हैं, आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं. आइसोटॉप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है. आइसोबार में जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. तो मेन आप आइसोटॉप्स का ज़्यादा अच्छे से करना. ओके, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया है. इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करना, प्रैक्टिस करना, समझना. ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो. ऑल राइट, तो आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? आप डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स पढ़ चुके हैं. स्टार्टिंग से आपने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. फिर आपने थॉमसन्स मॉडल पढ़ा, उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा, फिर बोहर्स मॉडल पढ़ा. फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आए, आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा. ठीक है, फिर आपने आउटर मोस्ट शेल पढ़ी, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पढ़े, ऑक्टेट पढ़ा. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़े. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी अलग होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. सबसे बाहर वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उससे हम वैलेंसी निकालते हैं लूजिंग और गेनिंग से. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन इज वैलेंस. ओके, उसके बाद आपने वैलेंसी पढ़ी और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल्स पढ़े, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. ऑलराइट, सो लर्न दिस चैप्टर प्रॉपरली.